Yes, students. Amit has incurred an expense of ₹5,000 towards repair. Incurred word लिखा है, paid नहीं लिखा. However, the amount is yet to be paid. Repair करवा ली है, जिससे करवाई है उसको अभी पैसे नहीं दिए. How will it be shown in accounting equation? Yes. Who will answer? बिल्कुल ठीक है. It is an outstanding expense, so it is to be written in the liabilities. And secondly, capital में से क्या होगा? माइनस होगा, because liabilities always increase our expense. ठीक है. It is an outstanding expense which is to be added to the expense. ठीक है. और फाइनल अकाउंट हमें ये सिखाता है उस एक्सपेंस में इसे ऐड कर देना. तो ultimately it is leading to a loss, so it is to be deducted from capital. So such type of questions can also be asked. Let's proceed to the next. See the next question. Yes, students sitting online, I am telling you it is an outstanding expense. Incurred है, paid नहीं है. So you have to understand the terminology of the accountancy. Then he says, Mr. Jaspal has purchased a car for ₹5 lakh, which he got finance, जो बैंक से फाइनेंस करवाया, मींस बैंक से लोन लिया. ठीक है. Which he got financed from bank to the extent of 5 लाख की गाड़ी है, उसने 4 लाख बैंक से लोन लिया, मींस बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाई. How will it be shown in accounting equation? अब दो हिस्सों में स्प्लिट है. 5 लाख गाड़ी की कॉस्ट है, 4 लाख ही बैंक से लोन लिया. How will you show in the accounting equation? Raise your hand. Don't speak in a group. बोलो जी. बिल्कुल ठीक है. एसेट प्लस 5 लाख. एसेट में 5 लाख आएगा. बोलो आगे. बैंक लोन कितने का आएगा? 4 लाख का आएगा. और 1 लाख से कैश रिड्यूस होगा, क्योंकि 1 लाख आपने अपनी ओर से डाला ना. अगर कोई आपसे पूछे जर्नल एंट्री, व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास? कार अकाउंट डेबिटेड. आगे टू बैंक लोन. ठीक है ना. टू बैंक लोन. 5 लाख की गाड़ी दिखा दीजिए. 1 लाख अपना चेक, क्योंकि लाख में अमाउंट है तो डेफिनेटली चेक में ही जाएगा. और बैंक लोन जो लिया है आपने वो 4 लाख का होगा. सो लाइक दैट वे यू हैव टू शो इट एट 3 places, right? See one more question. See the next question. If TA, that is total assets, are 4,50,000, outside liabilities that are 2 lakh, find owner's equity. Ankit, what is the other name of owner's equity? Owner's equity. Ankit किसका नाम है? What is the other name of owner's equity? Capital. So how the capital can be calculated with the help of total assets and outside liabilities? Why I wrote a word outside liability? Because it is internal liability. Owner's equity is my internal liability, right? हाँ जी बोलिए सर. फॉर्मूला है कोई? तीनों को किसी एक इक्वेशन में यूज करते हैं हम. बोलो फॉर्मूला. आज टेस्ट में है ये टॉपिक. यस बोलो बेटे. A माइनस एल इज इक्वल टू C. सो ये A है, एसेट है. ये L है, आउटसाइड लायबिलिटी है. 4.5 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए. ओनर्स इक्विटी 2,50,000 आएगी. इट वॉज वेरी सिंपल. ठीक. अब एक और देखते हैं, जिधर इक्वेशन थोड़ी सी मोल्ड करनी पड़ेगी आपको. सो 1 मार्क में ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है. इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स, राइट? देखिए, उसके बाद प्रिंसिपल्स रिवाइज करेंगे. दिस इज टीए 1,30,000. दिस इज 1,30,000. देन कैपिटल 80,000. फाइंड आउटसाइड लाइबिलिटीज. नाउ हाउ? फाइंड आउटसाइड लाइबिलिटीज. अब कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला वही बनाओ, बाद में साइन चेंज कर लेना. सो दिस विल बी A माइनस L इज इक्वल टू C. So assets are 1,30,000, liabilities इधर ही रही, कैपिटल इधर 80,000 है, उधर आके माइनस हो जाएगी, ये उधर चले जाएगी टर्म, इसका माइनस का साइन प्लस हो जाएगा.
so it will be what? 50,000, right? So you have to interchange the value. So whatever is being given, that you have to take to the other side, and the next item either can be deducted from here or it can be added, sign change के साथ, right? Identification of principles we are going to discuss. I will be speaking a statement and you have to tell which principle is being applied in that statement, right? On the screen, students also, they will be alert. Assets are recorded in the books at the cost incurred for acquisition of such assets. Raise your hand. I'm repeating, or let me write it. Identify the principle used in the statement. Assets are recorded at the cost incurred on the acquisition of assets. Yeah, on their acquisition we can write. On their acquisition. When we purchase, तो जो भी कॉस्ट हम इंकर करते हैं एसेट को उस पर रिकॉर्ड करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है. So whatever you pay, that is purchase consideration. What is going from your pocket? जो आपने उस पे खर्चा किया है एसेट को परचेज करने में, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट में लिखा है, उसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे. मींस अगर मैंने 4 लाख की मशीनरी खरीदी है और आज उसकी मार्केट प्राइस 3.5 लाख हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू इरेज इट. मैंने जितने में खरीदा है मेरे लिए एसेट की कॉस्ट वही है. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज लाइक दिस. ओके, चलो जतन, otherwise everyone will listen. The assumption is made that the entity in the question will remain in business for an indefinite period of time. The assumption is made that the entity in the question will remain in business for an indefinite period of time. बिल्कुल ठीक है, लगातार बिजनेस चलता रहेगा. मींस जिस एंटिटी, जिस एंटरप्राइज के क्वेश्चन में बात हो रही है उसके बारे में ये असम्पशन ली जाती है कि लगातार वो एंटिटी चलती रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू शट डाउन इन द नियर फ्यूचर. मींस वी आर पॉजिटिव. मैं और ज्यादा इसे एलैबोरेट करती हूँ क्योंकि बिजनेस क्लास जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलता है, तो डेफिनेटली छोटे पीरियड में ये बंद नहीं होने वाला. सो वी ऑलवेज अज्यूम इट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, राइट? यस, Ankit, capital contributed by the proprietor is credited to his capital account. Capital contributed by the proprietor is credited to his capital account. जो पैसा हमारा प्रोप्राइटर लेके आता है उसके लिए हम उसका एक कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक है. सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस मैं उसे अपने बिजनेस की इनकम नहीं मानती, मैं उसे अपनी लायबिलिटी मानती हूं, क्योंकि मैं अज्यूम करती हूं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग. सो दिस इज व्हाट बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. चलो मोहित, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31st March. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31st March. इसे चेंज भी कर दो ऑन 31st December. फाइनेंशियल, अब तो चैप्टर किया भाई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड व्हाट? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31st March. कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड भाई. जब वो साल की बात करेगा अकाउंटिंग पीरियड है. मींस हर साल 31 मार्च को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगी और 31 मार्च को मैं ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाऊंगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम्यक? What do you mean by financial statements? बिल्कुल ठीक है. और टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज को जज करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं भाई, और प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, राइट? चलो सम्यक, आप ही की टर्न है, ओरिजिनल टर्न. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश. ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश. रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड. कौन सा अकाउंट फॉलो किया? No, very easy. हाँ, yes, dual. For every debit there is a reverse credit. अगर मैं से कोई भी एंट्री बोलूं, मशीनरी परचेज, मशीनरी is to be debited and cash is being credited. Goods purchased on credit, purchases account debited, supplier account credited. Which principle I am following? Dual or double entry concept. For every debit there is reverse credit, right? चलो पुलकित,
Sale has been made in the year ended 31st March 2018. Sale has been made in the year ended 31st March 2018. But amount has not been realized. Revenue should be recognized as earned in the year 31st March 2018. 3 लाइनें मैंने बोली हैं. कहता है 31 मार्च को मैंने सेल कर ली, लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, लेकिन ये मानता है मेरा अकाउंटेंट कि रेवेन्यू जो अर्न हुई है वो हम लोगों ने 31 मार्च 18 को ही लिख के रखनी है. मिली नहीं है इनकम, सेल हो गई है, सामान हमारे से हमारे कस्टमर तक चला गया है और 31 मार्च 2018 ईयर भी खत्म हो गया है. फिर भी हमारा अकाउंटेंट कहता है चाहे इनकम नहीं भी मिली तो भी लिखेंगे 2018 के रिकॉर्ड में ही. हाँ, दोबारा बोल. रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सो व्हेनेवर यू मेक योर इनकम ड्यू, ठीक है, उसी टाइम आपने क्या मानना है कि आपका रेवेन्यू हो गया है. इसी तरह से अगर आपके डुअल कैसे हो सकता है, डुअल कैसे हो सकता है? एक्रूअल में अलग है भाई. एक्रूअल में हम एक्सपेंसेस की बात भी करते हैं, इनकम की भी बात करते हैं. रेवेन्यू में सिर्फ इनकम की बात करते हैं. वेदर इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट रेवेन्यू रिकॉग्निशन. यस, अगला भी बहुत बार पेपर में आता है. क्लोजिंग स्टॉक इज वैभव, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ, हमेशा ये याद रखना थ्रू आउट योर कॉमर्स करियर, सीपी और एमपी whichever is less, और एमपी whichever is less पे रिकॉर्ड होता है हमारा स्टॉक. इसे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ. रातों रात हमारा क्या है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, पेट्रोल पंप वालों को बैठे बैठाए फायदा है, लेकिन जब तक प्राइस नहीं बढ़ा था वो अपने पेट्रोल को, अपने स्टॉक को कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं. देसी घी का स्टॉक किसी स्टॉकिस्ट के पास पड़ा है, मान लो उसका रेट बढ़ गया, तो वो एमपी पे रिकॉर्ड नहीं करेगा, दोनों में से जो कम प्राइस होगा उस पे रिकॉर्ड करेगा. मींस वो हमेशा स्टॉक की वैल्यू सीपी और एमपी whichever is less पे रिकॉर्ड करता है. कौन सा प्रिंसिपल ये सिखाता है, कौन सा प्रिंसिपल ये सिखाता है? स्टॉक इज ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. नो 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 नो, इसका यस, इसका मतलब क्या है? बैठे बैठाए आप अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी बिका नहीं है सामान, स्टॉक तो आपके गोडाउन में पड़ा है भाई. जब बिकेगा तो हम सेलिंग प्राइस में लिख देंगे, पड़े पड़े आप अपने स्टॉक की वैल्यू कभी भी बढ़ाओगे नहीं, तो दोनों में से जो कम है आप उस पर रिकॉर्ड करोगे. जब बिकेगा तो वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा. सो ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस, नेवर फॉर प्रॉफिट. ठीक है, पड़े पड़े सामान की वैल्यू कभी भी एमपी पे मत रिकॉर्ड करना, मार्केट प्राइस पे तब रिकॉर्ड करेंगे जब बिकेगा, अभी तो गोडाउन में पड़ा भाई. ठीक है, सो प्रूडेंस हमें सिखाता है ये, कंजर्वेटिज्म हमें ये सिखाता है, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नेवर फॉर प्रॉफिट. दिस इज इट्स टैगलाइन, यू कैन से. टैगलाइन वैसे क्या है? ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस नेवर फॉर प्रॉफिट. दिस इज एन एग्जांपल. और इंप्लीकेशन कहां से हमें पता चलता है कि हम बिजनेस में ये फॉलो करते हैं? एक तो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन से, एक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन सीपी और एमपी whichever is less. राइट? हाँ जी, सियानप से काम करना है, विजडम से काम लेना, और बिजनेस को चलाने के लिए सियानप होती ही क्या है? ऑलवेज मेक सर्टेन सेविंग्स, always make certain reserves, always make certain provision to meet your contingency. तो ये भी तो indirectly meeting our contingency है. जो चीज अभी बिकी नहीं है उसे प्रॉफिट पे कैसे रिकॉर्ड कर लोगे? अगर स्टॉक बिका ही नहीं तो आप तो अपनी इन्वेंट्री और एसेट की वैल्यू बढ़ा के लिख रहे हो. यू आर रॉन्ग. ठीक है, इट इज ऑलवेज आर रनिंग. स्टॉक का मतलब क्या होता है? रनिंग मटेरियल, जो बिकता रहना. जब बिकेगा ठीक है, सेल उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे ना, अभी तो गोडाउन में ऐसे ही पड़ा है. ठीक है, सो स्टॉक इज ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड एट, मतलब अकाउंट्स में ना एंटीसिपेटरी प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है, अबाउट विच यू कैन ड्रीम ऑफ. ठीक है, जो आपको लगता है कि मेरे को हो जाएगा, हुआ थोड़ी ना. हाँ, लॉस की अगर आपको लगता है कि मेरे को होने वाला है, उसकी तैयारी करके रखो. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. लेकिन अगर आप गेन्स के बारे में पहले से तैयारी करके रखोगे, यू आर गोइंग टू बी अ फ्लॉप एंटरप्रेन्योर. राइट? सो एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट की हमारे अकाउंट्स में कोई भी स्पेस नहीं रहती. दिस यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट योर कॉमर्स करियर. चलिए आगे चलते हैं. हरप्रीत हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट whereby he will earn, अभी एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, whereby he will earn 10 lakh for the services to be provided in the next year. कोई बिल्डर, हम इसे बिल्डर मान लेते हैं, हरप्रीत का एक एग्रीमेंट हुआ है कि 10 लाख का आपको मिलेगा, 10 लाख का आपको गेन होगा और बदले में आपको सर्विसेज देनी होगी. The income should be recognized as revenue in the next year
after the services have been provided. कहता इससे होने वाली इनकम को उसी साल रिकॉर्ड करेंगे जब आप सर्विसेज दे दोगे. कौन सा कॉन्सेप्ट है? अभी एग्रीमेंट हुआ है ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यही तो कहता है, जब मिल गया या मिलने वाला है उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. लेकिन कौन से साल रिकॉर्ड करना है? जब एक्चुअली आपकी गुड्स और सर्विसेज आपने बेच दी. When you render your services, then only the revenue is to be recognized. When you sold the goods, ठीक है, आपने अपने डेटर को गुड्स बेच दी लेकिन अभी इनकम नहीं मिली. इवन देन आपने उसी साल, जिस साल बेची है सामान, उसी साल उसे क्या मानना है, रेवेन्यू. यहाँ पे सर्विस भी नहीं दी भाई, तो जिस साल आप सर्विस हो गया, अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और अकाउंट्स का में कॉन्ट्रैक्ट होना डजंट मीन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए योर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल एंड हियर बाय नो सर्विस हैज बीन एक्सचेंज्ड. तो बदले में अगर आपको एडवांस मिला भी नहीं है, ना ही आपने सर्विस दी है, दैट इज अगेन ऑन एंटीसिपेशन. लेट यू बी फर्स्टली प्रोवाइड द सर्विस and then you get the advance, then only you will be recording it in your books of accounts. तभी आप इसे अपने books of accounts में लिखेंगे. Again I am repeating the same sentence. Anticipation की कोई जगह नहीं है, आपके अपने ड्रीम्स की कोई जगह नहीं. एक्चुअली कुछ होता है, कोई इनकम आती है, आप उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे. राइट, अगेन इट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन. परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. व्हाई नॉट एन एसेट? परचेज ऑफ पेन कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है? यस, मटेरियलिटी. बिल्कुल ठीक. ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है, और ये क्या है? स्टेशनरी की परचेज है भाई, इसे एक्सपेंस ही मानेंगे. राइट, परचेज ऑफ पेन इज एन एक्सपेंस और परचेज ऑफ फर्नीचर इज ऑलवेज आर एसेट. सो मटेरियलिटी बिल्कुल ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Who will define the meaning of full disclosure? Who will define the meaning of full disclosure? Yes, students sitting online can also ask their queries, right? So this was your full disclosure. Any query from your side you can ask. Yes. Materiality का मतलब यहाँ पे, material का मतलब पहले तो यहाँ पे stock वाला material नहीं है. Materiality means it is not material for me. It is not materialized for me. इसका मतलब है ये मेरे लिए important नहीं है. तो हमारा अकाउंट्स हमें क्या सिखाता है? जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर रिकॉर्ड करनी है. अब टाटा बिरला वालों ने अगर 10 रुपए का कोई पेन या 50 का, इवन 10,000 का भी कोई ऐसा पेन खरीदा है, अगर वो स्किप कर देंगे इममटीरियल है. लेकिन एक पान वाले खोखे के लिए 2 रुपए की भी अगर कोई चीज ली है, मान लो मैच बॉक्स ली है, अगर वो नहीं रिकॉर्ड करता अपने खर्चे की लिस्ट में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम. So what is important for a business concern? It is not essential that is going to be same importance, having same importance for the other concern. कुछ चीजें हमारे स्मॉल स्केल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वही चीजें हमारे लार्ज स्केल बिजनेस हाउसेस के लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो दे अफोर्ड टू इग्नोर इट. So it will tell you, the scale of your business will tell you, the size of the business will tell you which is important for you and which is not important for you. तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, दैट यू आर रिकॉर्डिंग इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट. दिस इज व्हाट वी कॉल मटेरियलिटी. बुक की कोई लाइन नहीं समझ आती, दैट आई कैन एक्सप्लेन. अदरवाइज दीस आर द हाइलाइटिंग लाइंस व्हिच आई टोल्ड यू. मटेरियलिटी. एनी अदर डाउट? ऑब्जेक्टिविटी शायद सिलेबस में नहीं है, लीव दैट. एनी अदर? मनी मेजरमेंट, जो चीजें मनी में मेजर होती हैं आपने उसे ही रिकॉर्ड करना है. ठीक है, ये मैं बोल दूं कि 10 डाइनिंग चेयर्स पड़ी हैं, 2 बेड सेट पड़े हैं, एंड आई एम रनिंग अ फर्नीचर शॉप, दैट इज नॉट मनी मेजरमेंट. जब तक मैं उन 10 डाइनिंग चेयर्स को कैश में कन्वर्ट नहीं करती, मनी में कन्वर्ट नहीं करती, तब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखना इज नॉट एसेंशियल, दैट मच एसेंशियल, जब तक आप उसे करेंसी में कन्वर्ट नहीं करते हो. दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. एनीथिंग एल्स? Any other doubt, any other query you can ask?